Good morning, students. Today we are going to start the supplementary reader An Alien Hand of the 7th Standard NCERT syllabus. Now we are about to come is with this new first chapter, The Tiny Teacher. So begin of this. What is the name of this chapter? The Tiny Teacher. Here so to begin with this the tiny teacher. Okay, the tiny teacher. Who is a teacher? A teacher is a someone who teaches you like maths, physics, biology, Sanskrit, etc. And what not is that it? क्या इतना ही डिफिनेशन होता है एक टीचर का? नो. अ टीचर इज़ ए समवन हु गिव्स यू नॉलेज, जो आपको अपना विजडम देता है. अ टीचर टीचेज यू द वे ऑफ लाइफ, जीना कैसे है, हंसना कैसे है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, राइट? सो अ टीचर कैन टीच यू एवरीथिंग. सो हु कैन बी अ टीचर? अ टीचर कैन बी अ वेरी छोटा बच्चा, और अ टीचर कैन बी अ वेरी सीनियर पर्सन, और अ टीचर कैन बी अ क्यूट लिटिल कैट, और अ टीचर कैन बी एन एलिफेंट. सो क्योंकि हमें सीखने के लिए सबसे मिलता है, हमारा नेचर हमें कंटिन्यूअसली हमें बहुत कुछ सिखाता है, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर एंड हियर विद आवर लिटिल टाइनी टीचर. आज हमारा जो चैप्टर है एक छोटे से क्रीचर पर बेस्ड है, आधारित है. सो लेट्स नो सम वेरी इंटरेस्टिंग and important facts about ants. Name the smallest insect you have seen. सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट का नाम बताओ जो आपने देखा हो. Is it the fly? क्या यह मक्खी होती है? No, it isn't. नहीं, यह नहीं होती है. Is it the mosquito? क्या यह मच्छर होता है? No, not the mosquito. नहीं, मच्छर नहीं होता है. Then it must be the worm. तब यह कीड़ा होना चाहिए. No, none of this. नहीं, इनमें से कोई नहीं है. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. सबसे छोटा, सबसे कॉमनेस्ट और सबसे बुद्धिमान क्रीचर मीन्स कीट जो होती है वो एक चींटी होती है. एक चींटी की कहानी लगभग झूठी प्रतीत होती है, परंतु लोगों ने चींटियों को पालतू जीव के रूप में रखा और उनके हर रोज़ के व्यवहार को करीब से देखा. इसलिए हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. एक चींटी अपने महसूस करने वाले एंटेनाओं से दूसरी चींटियों द्वारा इनके मैसेज को भेजकर बात करती हैं.
एक दीवार पर इधर उधर जा रही चींटियों की पंक्ति को देखो। हर एक चींटी दूसरी चींटी से एक ग्रीट करती है। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना। उनका जो फीलर्स होता है, आपने देखा होगा कि चींटी के हेड के ऊपर बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं, तो वो एक दूसरे को टच करके वो एक दूसरे का अभिवादन करती हैं और बात भी करती हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. जो चींटी होती है वो कई प्रकार की होती है। सबसे आम जो चींटी होती है वो ब्लैक और रेड की होती है, जैसे हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं। हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं, परंतु हमने कभी भी यह ध्यान नहीं दिया है कि वो कहाँ रहती हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं और उनके घर को घोंसला या आंट हिल कहते हैं। और इनका जो घर होता है, each has hundred of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Others are nurseries for the young one, called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldiers or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. जो चींटियाँ होती हैं इनके घर को एंट हिल कहते हैं और इनके घर में सैकड़ों छोटे छोटे रूम होते हैं और रास्ते होते हैं और इनमें से ही किसी एक कमरे में जो रानी चींटी होती है वह अंडा देती है। दूसरे कमरे में छोटे बच्चों की नर्सरी होती है। जो छोटे इनके बच्चे उनको ग्रब बोला जाता है। और जो वर्कर होते हैं जिन्हें हम कर्मचारी कहते हैं उनके अपने रिजर्व कमरे होते हैं। वे अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। कुछ कमरे इनके जो होते हैं वो भोजन के गोदाम होते हैं। सिपाहियों की अलग बैरक होती है। किसी भी कर्मचारी ने एक सिपाही के घर में रहने की कोशिश कभी नहीं की है। सबके सेपरेट रूम होते हैं। न ही कोई सिपाही कभी भोजन की तलाश में गया है। किसी कर्मचारी या सिपाही या सफाई कर्मी ने कभी एक कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप देख रहे हैं एक जो चींटी होती है उसका जो जीवन होता है कितना पीसफुल होता है, कितना शांतिमय होता है। प्रत्येक चींटियाँ अपनी काम को बुद्धिमत्ता से और बहादुरी से करती हैं और समूह के दूसरे सदस्यों से कभी भी नहीं लड़ती हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its mating flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air on its return to earth.
It gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise, and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. जो रानी एंट होती है, रानी चींटी, पूरी कॉलोनी की माँ होती है। यह लगभग 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इनके पास एक जोड़ा पंख होता है, परंतु वह उनको शादी की उड़ान के बाद खा जाती हैं। यह उड़ान गर्मियों के एक गर्म दिन के अंदर भरी जाती है। रानी घोंसला अपना छोड़ देती है और वह एक नर चींटी से मिलने के लिए चली जाती है, या एक नर चींटी से मिलने ऊपर हवा में। धरती पर वापस लौटने पर यह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती है। अंडे सेए जाते हैं और कीड़े बाहर आते हैं। सिपाही उनकी रखवाली करते हैं, कर्मचारी उनको खिलाते हैं और सफाई करते हैं, और हर रोज़ उन्हें हवा खिलाने, कसरत करवाने और धूप खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। 2 या 3 सप्ताह बाद कीड़े कुकुन बन जाते हैं। Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. 2-3 सप्ताह बाद जो छोटे कीड़े होते हैं वो कोकून बन जाते हैं और बिना भोजन व गतिविधि के लेटे रहते हैं 3 सप्ताह तक या इससे अधिक। फिर जो कोकून है वो टूटते हैं और संपूर्ण जो चींटियाँ होती हैं वो उससे बाहर आ जाती हैं। और अब समय आ जाता है पढ़ाई का और ट्रेनिंग का। नई चींटियाँ बूढ़ी चींटियों से अपना कर्तव्य सीखती हैं। एक कर्मचारी के रूप में, सिपाही के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में, सफाईकर्ता के रूप में, ये जो सारे टाइप्स हैं, इन सारे टाइप्स को वो सीखती हैं। कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ होती हैं काम के बड़े संसार में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, razors, birds of ants, the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nets? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. Others give sweet juices, and some are just pets or playing things like cats and dogs to human beings. The greenfly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. एक आंट हिल न केवल एक छोटी सी चींटियों का घर होता है बल्कि कुछ दूसरे जीवों का भी घर होता है, जैसे कि बीटल्स, चींटियों की जो छोटी नस्लें होती हैं जैसे हरी मक्खी,
चींटियाँ इन विदेशियों को अपने घरों में क्यों रखना चाहती हैं? कुछ कारण हैं जिससे वो रखना चाहती हैं। कुछ अच्छी जो चींटियाँ होती हैं वो खुशबू छोड़ती हैं, कुछ जो चींटियाँ होती हैं वो इंद्रियों को भाती हैं, और जो कुछ होती हैं वो मीठे रस छोड़ती हैं, और कुछ दूसरे जो जीव होते हैं वो पालतू होते हैं। जैसे आदमी कुत्ते या बिल्ली रखता है वो वैसे ही पाली जाती हैं। हरी मक्खी चींटियों की गाय होती हैं। चींटियाँ इसको शहद की बूंद देने के लिए प्रशिक्षण देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, और यह अपने एंटीना के छूने के साथ ही वे इसको दूध की तरह निकालती हैं, जैसे कि गाय के दूध को निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एंड्स हैव? क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख चुके हैं? शायद वे सीख चुके हैं, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई का सही प्रयोग नहीं किया है। वे अभी भी कुछ चीज़ें इस छोटे जीव से सीख सकते हैं, जैसे कठिन मेहनत, कर्तव्य परायणता और अनुशासन, सफाई, छोटों की देखरेख, और सबसे बड़ी बात पक्की वफादारी उस धरती के प्रति जहाँ वे रहते हैं। थैंक यू।